محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے. کسی کا حق نہ مار بیٹھنا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی بلشت بھر زمین بھی دبا لی تو قیامت کے دن دبائی گئی زمین کے برابر 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر. اب دہلی میں بھی لہرائے گا ٹی آر ایس کا جھنڈا. دہلی میں ٹی آر ایس دفتر کے لیے فراہم کردہ اراضی کا ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے لیا جائزہ. مرحوم ٹی آر ایس قائد ممبر یاسین صابری کے افراد خاندان سے زیڈ پی چیئرمین ڈی وٹھل راؤ، ٹی آر ایس صدر ایگا گنگا ریڈی و رام کشن راؤ نے ملاقات کرتے ہوئے دیا پرسہ. وہ ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا کیا وعدہ. بودھن کی ترقی کے لیے حلقہ اسمبلی بودھن مسجد منڈلوں میں کیا جائے گا تقسیم. رکن اسمبلی شکیل احمد. کلیکٹریٹ مسجد کی بازیابی و خلیل سے رائے کی اراضی پر سے قابضین کو برخاست کرنے کے لیے صدر کمیٹی حافظ لئی خان کی پیش رفت جاری. خدا کی امانت کی حفاظت کرنا ہر ایک کا فرض. ضلع سرکاری ہاسپٹل کا ایک اور عظیم کارنامہ. کورونا سے متاثر حاملہ خاتون و اس کے بچوں کی بچائی جان. گورنمنٹ ہاسپٹل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر پرتیما راج نے ڈاکٹرز کی خدمات کی ستائش. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. ضلع نظام آباد زیڈ پی چیئرمین وٹھل راؤ نے ٹی آر ایس پارٹی سینئر قائد مرحوم یاسین صابری کے سانحہ ارتحال پر ان کے مہلوکین خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے دیا پرسہ. ضلع نظام آباد زیڈ پی چیئرمین وٹھل راؤ نے ٹی آر ایس سینئر قائد یاسین صابری کے سانحہ ارتحال پر ان کے مہلوکین خاندان سے ملاقات کر غمزدہ خاندان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پرسہ دیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس پارٹی سینئر قائد مرحوم یاسین صابری ٹی آر ایس پارٹی سے 2001 سے جڑے ہوئے تھے اور اہم ترین خدمات انجام دیتے ہوئے پارٹی کے مختلف پروگرام میں ہمیشہ پیش رہ کر ٹی آر ایس پارٹی کے لیے انمول نقش چھوڑنے کا انکشاف کیا. اس پروگرام میں ضلع کے ٹی آر ایس پارٹی پریزیڈنٹ ایگا گنگا ریڈی کے ساتھ نوڈا ڈائریکٹر اختر خان، رائتو سامانویہ کمیٹی نوی پیٹ منڈل کے صدر مانکیشور راؤ، کے سی آر سیوا دل ضلع کے صدر رمن راؤ، منوہر راؤ و دیگر نے شرکت کی. ڈویژن نمبر 60 کے عوام کے لیے مجلس اتحاد المسلمین انچارج کارپوریٹر محمد عبدالغفور مقیم کے ایک اور بیلوز خدمات. علاقے کو رات کے اوقات روشناس کروانے کے لیے جدید LED اسٹریٹ لائٹ کا قیام. علاقے کے عوام میں خوشی کی لہر. آج بھی کئی اقلیتی علاقے رات کے وقت تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت میں شہر میں کافی تبدیلی رونما ہو رہی ہے. مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر کارپوریٹر محمد عبدالغفور مقیم، جنہوں نے اپنی بیلوز کارکردگی سے اپنے علاقے کے عوام کا دل جیت لیا ہے اور ان کی یہ خدمات مسلسل جاری رہے گی، اور آج ان کی نمائندگی و قیادت پر ڈویژن نمبر 60 کے مختلف گلیوں میں جدید اسٹریٹ لائٹس لگائی گئی تاکہ رات کے اوقات اس علاقے کے عوام کو عبادت کے لیے مساجد آنے میں آسانی ہو. اس موقع پر علاقے کے عوام نے خوشی کا اظہار کیا. بودھن منڈل کے عصر نو تشکیل پرزور. حلقہ اسمبلی بودھن شکیل عامر کا اعلان. حلقہ اسمبلی بودھن سے وابستہ ٹی آر ایس رکن اسمبلی شکیل عامر کے بموجب اس وقت بودھن منڈل کی موجودہ آبادی کافی بڑھ چکی ہے، جس کے باعث بودھن منڈل کی عصر نو تشکیل پر متعلقہ حکام کے مابین تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے. متوقع ہے کہ بودھن حلقہ اسمبلی کے تحت مسجد منڈلز کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے. واضح ہے کہ حکومت تلنگانہ کے مطابق ہر منڈل کی آبادی 60,000 جبکہ ہر ایک ٹاؤن کی آبادی 1 لاکھ پر مشتمل ہونا چاہیے. ریاست میں 300 تا 400 رائتو ویدیکا کی تعمیر، لیکن ہر حلقہ اسمبلی میں منی حج ہاؤس، سرکاری مسلم شادی خانہ تعمیر میں حکومت کی عدم دلچسپی. حکومت اور برسر اختیار قائدین اس سلسلے میں صرف وعدہ کر رہے ہیں، وقت گزار رہا.
वज़ीर ज़राअत तेलंगाना संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कल कहा कि आने वाले दिनों में रियासत में 300 ता 400 नए रायतु वेदिकास तामीर किए जा रहे हैं। कई जगह पर हुकूमत ने मंजूरी देते हुए फंड्स की ड्राई अमल में लाई है और तेजी से तामीर मुकम्मल किए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत ने रायतु वेदिका की तामीरी लागत के लिए 572.22 करोड़ रखे हैं। हर रायतु वेदिका की तामीरी लागत के लिए 22 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हर हल्का असम्बली में किसान रायतु वेदिका इमारत की सिर्फ 5 माह में तामीर अमल में लाने का ऐलान किया गया है और किसान रायतु वेदिका इमारतें तेजी से तामीर की जा रही हैं। अराजी मुख्तस की जा रही है। इस सिलसिले में तमाम उमूर तेजी के साथ अंजाम दिए जा रहे हैं जो खुश आइंद है। लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हर हल्का असम्बली में मिनी हज हाउस और सरकारी मुस्लिम शादी खाने की तामीर क्यों अमल में नहीं लाई जा सकती। मरकजी हज हाउस के अलावा अगर हर हल्का असम्बली में मिनी हज हाउस की तामीर अमल में लाई जाती है तो आज़मीन हज के तमाम तरबियती और रवानगी कैंप के इनेकाद में बहुत बड़ी आसानी होगी। हल्का असम्बली जात में मिनी हज हाउस की तामीर का अखिलती तबके की जानिब से पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत या अरकान असम्बली इस सिलसिले में सिर्फ वादा कर रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं। रियासत तेलंगाना में TRS हुकूमत को इख्तियार पर आए 6 साल से ज्यादा अरसा हो रहा है, लेकिन अभी तक मिनी हज हाउस या मुस्लिम सरकारी शादी खाने की तामीर के सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं की जा रही है। दौरे हाजिर में शादी बहुत महंगी साबित हो रही है। अगर TRS हुकूमत हर हल्का असम्बली में सरकारी मुस्लिम शादी खाने की तामीर अमल में लाती है तो गरीब मुस्लिम खानदानों पर बहुत बड़ा माली बोझ कम होगा। TRS हुकूमत तालीम के फरोग के लिए इक़दामात कर रही है जिसकी जितनी सताइश की जाए कम है। अक़लियती तलबा को कॉर्पोरेट तर्ज पर मुफ्त तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। अगर तालीम के साथ साथ TRS हुकूमत हर हल्का असम्बली में मिनी हज हाउस और सरकारी मुस्लिम शादी खाने की तामीर अमल में लाती है तो सोने पे सुहागा माना जाएगा। हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन में भी मिनी हज हाउस और सरकारी मुस्लिम शादी खाने की तामीर का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। निजामाबाद अर्बन में कई सरकारी और वक्फ अराजियात वाक़ है जिस पर नाजायज कब्जा कर लिया गया है। सरकारी या वक्फ अराजियात पर नाजायज कब्जाजात को बर्खास्त कराते हुए मिनी हज हाउस और मुस्लिम सरकारी शादी खाना तामीर किया जा सकता है। हुकूमत और अरकान असम्बली सरकारी या वक्फ अराजियात को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए कोई मंसूबा नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मिनी हज हाउस या सरकारी मुस्लिम शादी खाने की तामीर के लिए अराजी दस्तयाब नहीं हो रही। हालांकि ये बहुत आसान निशाना है। सरकारी या वक्फ अराजियात पर नाजायज कब्जाजात के लिए धोखेबाज रियल एस्टेट ताजिन पूरी चौकसी का मुजाहरा कर रहे हैं। क्या वक्फ रेवेन्यू ओहदेदार सरकारी वक्फ अराजियात की निशानदही नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है। रियासत तेलंगाना के हर हल्का असम्बली में वसी वक्फ अराजियात लावारिस पड़ी हुई है, जहाँ पर मिनी हज हाउस और सरकारी मुस्लिम शादी खाने की तामीर अमल में लाते हुए हुकूमत तेलंगाना मुस्लिम अक़लियत के लिए कई काबिल सताइश इक़दामात में मज़ीद इजाफा कर सकती। जमीयत उलमा निज़ामाबाद के वफद का हैदराबाद में हालिया सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा। जमीयत उलमा निज़ामाबाद के एक वफद ने मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब की क़यादत में नगद रकम, कपड़े और चावल पर मुश्तमिल सामान के साथ हैदराबाद पहुंचकर हाफिज पीर शबीर अहमद सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा के हवाले किया और मुतासिरा मकामात का दौरा करते हुए बड़े ही दुख और दर्द का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर साफ सफाई और पानी की निकासी को यकीनी बनाए और जल्द अज जल्द वहाँ के अवाम को फिर से बसाने का काम करे। बसूरत दीगर इन मुतासिरा इलाकों में ताफुन के फैलने और वबाई बीमारियों के वजूद में आने का शदीद खतरा लाहक हो सकता है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा निज़ामाबाद ने किया और रफ़ाही व फलाही काम में लगी हुई तमाम ही तंजीमों और सोसाइटियों व कारकुनान का शुक्रिया अदा करते हुए रियासती जमीयत उलमा व सिटी जमीयत उलमा सदर जनाब अलहाज पीर शब्बीर साहब व जनाब मुफ्ती अब्दुल मुग़नी मुज़ाहिरी साहब के कामों से इत्मीनान का इजहार करते हुए अवामुल नास से अपील की कि यहाँ भी बहुत काम की जरूरत है। मरहलेवार कामों को मुनज़्ज़म तौर पर अंजाम दिया जा रहा। कई मकानात अभी भी ज़ेर-ए-आब है। गाड़ियाँ और दीगर घरेलू सामान भी नाकारा हो चुके हैं जिनकी मरम्मत की जरूरत है, जिसके लिए मज़ीद रकम मतलूब है। तमाम ही मुसलमान और जमातों पर एतमाद करते हुए मज़ीद ताउन करते रहें। इस मौके पर मुफ्ती रफीक जाकिर क़ासमी, मौलाना अब्दुल रहमान माजिद, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर, हाफिज अतीक अहमद, मौलाना अरशद अली क़ासमी, मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी, हाफिज हामिद मजहरी, हाफिज राशिद मौलवी अब्दुल्ला, वसीम अहमद खान, हाफिज जुबैर के अलावा दीगर अहबाब मौजूद थे। का एक वफ्द यहाँ उस्मान नगर तालाब के इलाके में मुआयना करने के लिए आया और बहुत करीब से हम लोगों ने मुतासिरीन और मुतासिरा घरों को देखा है।
जनाब मुफ्ती अब्दुर्रहमान माजिद साहब जो सिटी जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के मुतहर्रिक और फ़ाल कारकुन हैं, उनके साथ हम लोगों ने यहाँ का दौरा किया। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमको महसूस हो रहा है और यहाँ पर अभी भी पानी आप देख सकते हैं कि जमा शुदा है यहाँ पर, और इन लोगों की बाज़ाबादकारी और राहत रसानी के लिए जो इक़दामात रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं, अल्लाह पाक उसको भी कबूल फरमाए और तमाम ही मुसलमानों की बल्कि सारे आलम के इंसानों की अल्लाह पाक वबाई अमराज से और जो है आफ़ात समावी आफ़ात अर्ज़ी से महफूज फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए। बस हमारा मुतालबा यही है हुकूमत तेलंगाना से कि यहाँ जो पानी जमा है जल्द से जल्द उसको खाली करने और निकालने और यहाँ की सफाई सुथराई पर ख़ास तौर पर तवज्जो दें, और बल्दिया का जो अमला है उनसे भी हम अपील करते हैं कि इस जानिब तवज्जो दें ताकि लोग यहाँ ताफुन ना फैलने पाए, वरना अगर ताफुन फैल जाए तो फिर मज़ीद बीमारियों के फूट पड़ने का भी अंदेशा और ख़दशा है। इसलिए हम अपील करते हैं और मुतालबा करते हैं जमीयत उलमा ज़िला दिल्ली के वसंत विहार में टीआरएस पार्टी दफ्तर की तामीर के लिए 1100 मुरब्बा मीटर की अराजी का रियासती वजीर इमारत और शौरा विमल प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमल प्रशांत रेड्डी ने कहा कि 20 साल कबल एक वाहिद शख्स से शुरू होने वाली तहरीक का असर दिल्ली पर होकर तेलंगाना का परचम दिल्ली में लहराने का वक्त आने का इजहार करते हुए कहा कि अपनी हरकयाती कायदाना सलाहियतों के सबब तमाम अवाम को मुत्तहद कर अपनी जान की परवाह न करते हुए रियासत तेलंगाना को हासिल करके अवाम को तोहफे के तौर पर पेश किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना वज़ीर आला केसीआर की काविशों के सबब रियासती तेलंगाना समिति अनकरीब मुल्क की राजधानी दिल्ली में एक अहम टीआरएस पार्टी दफ्तर की तामीर अमल में लाई जाएगी, जो तमाम टीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनान के लिए काबिल फख्र कारनामा होगा। और इतने अजीम प्रोग्राम के लिए मुझे मदऊ करने पर मैं वज़ीर आला केसीआर को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिले निजामाबाद जेडपी चेयरमैन विठल राव ने बोधन एरिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तनक़ीद की। जिले निजामाबाद जेडपी चेयरमैन विठल राव ने बोधन एरिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तनक़ीद करते हुए हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों का और हामिला खवातीन के रूम का मुआयना करके छत के अगबी हिस्से का सरसरी तौर पर जायजा लेते हुए सुपरिंटेंडेंट को छत की मरम्मत करने के लिए हिदायत जारी करने के बाद इन्होंने कोरोना के पेश नजर लॉकडाउन का निफाज अमल में आने के बावजूद भी तिब्बी अमले की जानिब से काबिल तरीन खिदमत अंजाम देने पर तिब्बी अमले की भरपूर सताइश करते हुए कोरोना के होने के बावजूद भी सफाई अमले की जानिब से साफ सफाई कामों को दिलचस्पी से अंजाम देने पर इनकी तारीफ करते हुए कोरोना पॉजिटिव हामिला खवातीन की कामयाब ज़िंदगी अमल में लाने पर खुशी का इजहार किया। ఇది హాస్పిటల్ అంటేనే ఒక దేవాలయం, మరి భక్తులు అంటే పేషెంట్స్, మరి డాక్టర్స్నేమో నేను పూజారీలుగా పేర్కొంటాను. ఎందుకంటే హాస్పిటల్ అంటే అద్దంలాగా మంచిగా నీట్నెస్గా ఉండాలి. వచ్చేది గరీబోళ్ళు కాబట్టి మంచి సేవ చేయాలనే ఉద్దేశం. మానవ సేవయే మాధవ సేవ అంటారు. కాబట్టి ప్రొఫెషనల్స్ కొందరు వృత్తిరీత్యా జాబ్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు. కొందరు ఏం చేస్తారంటే చాలా తక్కువ మంది ఈ రోజుల్లో టైంపాస్కు జాబ్ చేసి ఫస్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది సండే ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటారు. ఇంకా చాలామంది 75% మంది డివోట్గా వర్క్ చేస్తారు. प्रिंसिपल सिविल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज निजामाबाद रमा देवी से जिले कलेक्टर की मुलाकात। नए जिले जज निजामाबाद मिसेस के साई रामा देवी की क़यामगाह पर 3 नवंबर की शाम जिले कलेक्टर निजामाबाद सी नारायण रेड्डी ने एक गैर सगाली तौर पर मुलाकात करते हुए मौसूफा को जिले जज निजामाबाद के ओहदे का जायजा लेने पर इन्हें मुबारकबाद देने के अलावा इन्हें एक गुलदस्ता भी पेश करते हुए अपनी तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। प्रिंसिपल सिविल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुत्तहदा जिले निजामाबाद की हैसियत से साई रमा देवी ने 2 दिन कबल अपने ओहदे का जायजा हासिल किया है। जिले अदालत संगारेड्डी में जिले जज के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली साई रमा देवी का जिले जज निजामाबाद के तौर पर तबादला अमल में आया। जिले जज ने बताया कि लोक अदालत में तमाम तरह के रजामंदी के मुकदमात के एक्सवी के इम्कानात होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर 7 नवंबर को मुनक़दा कौमी मेगा मिजाजी लोक अदालत को कामयाब से हमकिनार किया जाएगा। जिले जज ने कहा कि कोरोना के पेश नजर मजाजी मोबाइल के जरिए केसों की एक्सवी अमल में लाई जाएगी। जिले निजामाबाद बालकुंड हल्का असम्बली मौजे डोनकल में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा सीसी प्लेटफॉर्म को मुकामी अवामी नुमाइंदों के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया।
ضلع نظام بالکنڈ حلقہ اسمبلی موضع ڈونکل میں تلنگانہ حکومت کی جانب سے منظور کردہ CC پلیٹ فارم کو مقامی عوامی نمائندوں کے ہاتھوں آغاز عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ موضع کے کسانوں کی فصل کی کٹوائی کے بعد ذخیرے کو سکھانے کے پیش نظر آنے والی دقت کو مد نظر رکھتے ہوئے تلنگانہ حکومت کی جانب سے کسانوں کو اپنے دھان کی ذخیرے کو سکھانے کے لیے CC پلیٹ فارم منظور کرنے پر تمام کسانوں کی جانب سے تلنگانہ حکومت کے وزیر اعلیٰ KCR کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا گیا۔ اس پروگرام میں مقامی MPTC اشوک، منڈل کے صدر الیہ، نائب سرپنچ PACCS چیئرمین راجیشور، سابق سرپنچ مٹینا، سنجیو ریڈی، چنا ریڈی، سرینیواس، نرسا ریڈی، راجنا ارون، ٹیکنیکل اسسٹنٹ TAGP کے سیکریٹری خان و دیگر نے شرکت کی۔ ضلع نظام بالکنڈ حلقہ اسمبلی مورتاڑ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل وینکٹا کرشنا کے ہاتھوں طلبہ میں کتابوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ ضلع نظام بالکنڈ حلقہ اسمبلی مورتاڑ گورنمنٹ جونیئر کالج کے پرنسپل وینکٹا کرشنا نے طلبہ کو مفت کتابوں کی تقسیم عمل میں لاتے ہوئے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام طلبہ 10th کلاس میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مد نظر انٹرمیڈیٹ کالج میں درخواست پیش کر داخلہ حاصل کرنے کی گزارش کی۔ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کالج میں داخلہ حاصل کرنے والے طلبہ کو اسکالرشپ فراہم کرتے ہوئے اعلیٰ تعلیمی قابلیت رکھنے والے لیکچرر کی جانب سے پڑھائے جانے کا اظہار کیا۔ کالج میں تمام اہم ترین سہولتوں کو فراہم کرتے ہوئے تمام طلبہ کے بہتر مستقبل کے لیے کوششیں کیے جانے کا انکشاف کیا۔ اس پروگرام میں جونیئر کالج کے لیکچرر، طلبہ و دیگر نے شرکت کی۔ اکھیلا بھارتیہ ودیارتھی پریشد کے زیر نگرانی میں تلنگانہ یونیورسٹی کے احاطے میں پرزور احتجاج درج۔ اکھیلا بھارتی ودیارتھی پریشد کے زیر نگرانی میں تلنگانہ یونیورسٹی کے احاطے میں پرزور احتجاجی دھرنا منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ABVP کے سیکرٹری انیل نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ یونیورسٹی ہاسٹل کو نہ کھول کر طلباء کے لیے امتحانات منعقد کرنا دراصل طلباء کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے ان کی زندگیوں کو برباد کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آج یونیورسٹی کے احاطے میں ایک پرزور احتجاجی دھرنا منعقد کر کے طلباء کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے کووڈ-19 کے اصول و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے تلنگانہ یونیورسٹی کالج کا دوبارہ آغاز کر کے طلباء کی سہولیات کے پیش نظر امتحان سینٹر قریبی معاملات پر منعقد کرنے کے لیے مطالبہ کیا۔ اس پروگرام میں نوین، سائی، وگنیش، گنیش اور دیگر نے شرکت کی۔ تیسرے مرحلے میں ITI کورسز کے لیے درخواستوں کی طلبی۔ ضلع نظام آباد میں واقع تمام سرکاری و خانگی ITI کے مختلف کورسوں میں جاریہ سال داخلوں کے لیے اب تک 2 مرحلوں میں داخلوں کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ ماباقی نشستوں کو پر کرنے کی غرض سے متعلقہ حکام کی جانب سے خواہشمند طلباء و طالبات سے مزید درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں اور 4 نومبر تک 11 نومبر کے درمیان iti.telangana.government.in ویب سائٹ پر آن لائن کی جا سکتی ہے۔ یہ بات ضلع ITI کالج نظام آباد کنوینر کوٹی ریڈی نے اپنے جاریہ ایک صحافتی اعلامیہ میں بتایا۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات میں غیر حاضر طلباء بھی کامیاب، رعایتی نشانات دینے کے احکامات جاری۔ ریاستی حکومت نے مارچ 2020 میں منعقدہ انٹرمیڈیٹ امتحانات میں غیر حاضر رہنے والے 27,589 امیدواروں کو بھی کامیابی کے رعایتی نشانات دینے کے لیے احکام جاری کر دیے ہیں۔ سیکریٹری تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن جناب سید عمر جلیل نے بتایا کہ کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے جو غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کے پیش نظر ریاستی حکومت نے انٹرمیڈیٹ امتحانات میں غیر حاضر رہنے والے طلباء کو بھی رعایتی نشانات دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سہولت سے جملہ 27,251 امیدوار استفادہ کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے جیو نمبر 205 مورخہ 3 نومبر جاری کر دیا۔ متعلقہ امیدواروں کو مطلع کیا گیا کہ وہ نظر ثانی شدہ مارکس میمو 5 نومبر کو 5 بجے شام سے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ صنعتوں کے قیام کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات، نظام آباد میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ، کلکٹر نارائن ریڈی کا خطاب۔ ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے اپنے چیمبر میں پنچایت راج انجینئرنگ عہدیدار کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا اور اس موقع پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ضلع میں جاری MP لائٹس کے کاموں کا جائزہ لیا۔ MP لائٹس فنڈز جاری تعمیری کاموں کو فوری طور پر انجام دینے کی ہدایت دی اور اس ماہ کے آخر تک مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ اسی طرح CDF کے فنڈ سے تعمیر کیے جانے والے کاموں کو بھی مکمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے ضلع میں 319 شمشان گھاٹ کی تعمیر کے لیے منظوری دی گئی تھی۔
इनमें से 117 कामों को मुकम्मल किया गया, बाकी 138 काम ज़ेरे तामील। लिहाजा इन कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करते हुए बिलों की अदायगी करें। इसी तरह रायतु वेदिका के कामों को तेजी के साथ अंजाम दही पर मुबारकबाद देते हुए 6 नवंबर तक इन कामों को मुकम्मल करें। जिले कलेक्टर मिस्टर नारायण रेड्डी ने सनअतों के क़याम के लिए हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। जिले में सनअतों के क़याम के लिए दरख्वास्त गुजारी करने वाले अफराद को फौरी तौर पर मंजूरी दी जाएगी। ये TSI पास के तहत जिले में 5 SC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को ट्रैक्टर्स, गवर्नमेंट मोटर्स की मंजूरी अमल में लाई गई है। मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर का 402वां यौम पैदाइश। मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर की 3 नवंबर को 402वीं यौम पैदाइश मनाई गई। वो 3 नवंबर 1618 को गुजरात के इलाके धड़ूर में पैदा हुए थे। मुगल शहंशाह शाहजहां 1627 था 1659 और मुमताज महल के फर्जिंद औरंगजेब ने हिंदुस्तान पर तकरीबन 50 साल हुकूमत की। साल 1658 से 1707 तक हिंदुस्तान पर इनकी हुक्मरानी के कारनामे तारीख का अहम हिस्सा है। औरंगजेब मुतक़ता परहेजगार हाफिज कुरान हुक्मरान थे। हुकूमत के खजाने से अपनी जात पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे। वो अपना गुजर बसर टोपियां बनाकर और कुरान मजिद की ख़ताती के जरिए हासिल होने वाली रकम से करते। इस्लामी तालीमात को आम करने के लिए इन्होंने काफी मेहनत की थी। शहर निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर ने मुकामी कॉरपोरेटर्स के हमरा शहर में जारी साफ सफाई कामों का लिया जायजा। शहर निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर ने शहर में आगाज होने वाले साफ सफाई कामों के तहत जोन 2 में 25वें डिवीज़न कोट गली इलाके और जोन 3 में 50वें डिवीज़न शिवाजी नगर और जोन 1 में 17वें डिवीज़न राजीव नगर में जारी साफ सफाई कामों को मुकामी कॉरपोरेटर्स के हमरा मुआयना करते हुए कहा कि मानसून के मुकम्मल होने के बाद आबो हवा में तब्दीली के पेश नज़र आने वाले मुख्तलिफ वबाई अमराज के फैलाव को रोकने के लिए तेलंगाना हुकूमत की हिदायत के मुताबिक शहर के अहाते में 10 रोज़ा साफ सफाई अहम प्रोग्राम को आज से शुरू करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद किनारों को साफ करते हुए जंगली पौधों को निकाल कर मच्छरों से निजात के लिए जरासीम का शद्वियात का छिड़काव करके अवाम की सेहत की हिफाजत करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर्स धर्मापुरी, रघुवेंद्र, सविता, म्यूनसिपल इंजीनियर शंकर, ఇన్స్పెక్టర్ నటరాజ్ గౌడ్, ప్రశాంత్, సునీల్ व दीगर ने शिरकत की। ఏదైతే 5 జోన్లు ఉన్నాయో ప్రతి జోన్లో ఒక్కొక్క వార్డు 25 నుంచి 30 మంది లేబర్ని హైర్ చేసుకొని ప్రత్యేకంగా శానిటేషన్ అంటే డ్రైన్స్ తీయించడం కానివ్వండి, యాంటీ లార్వా లిక్విడ్ పోయించడం కానివ్వండి, ఫాగింగ్ చేయించడము, అలాగే పిచ్చి మొక్కలన్నీ తీసేయడం, కలుపు మొక్కలని ఈ విధంగా ఈ శానిటేషన్లో భాగంగా చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది। అయితే ఈరోజు 5 వార్డులలో ఈ వర్క్ జరుగుతుంది। అంతటా కూడా కార్పొరేటర్స్ దగ్గరుండి వారి పనులను వాళ్ళు జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ వారితో చేయించడం కూడా జరుగుతుంది। जिले सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एक और बार किया जिले का नाम रियासत में रोशन। कोरोना से मुतासिर हामिला खातून का इलाज करते हुए 3 बच्चों और मां की जान बचाई। डॉक्टर प्रतिमा राज ने डॉक्टर्स की खिदमत की सताइश। निजामाबाद सरकारी हॉस्पिटल जो कोरोना के दौर में अपनी काबिलियत को साबित कर चुका है, यहाँ के डॉक्टर्स के अमले ने एक और कामयाबी की रियासत में मिसाल कायम की। गुज़िश्ता माह की 22 तारीख को एक खातून जो अपनी शादी के कई साल बाद काफ़ी इलाज के बाद हामिला हुई थी और आखिरी मरहले में कोरोना से मुतासिर होने के सबब किसी खानगी हॉस्पिटल की जानिब से दाखिला ना करने पर ज़िले सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, जिस पर सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर प्रतिमा राज की दिलचस्पी और डॉक्टर्स की मेहनत के सबब सर्जरी करते हुए डिलीवरी की गई, जिसमें इस खातून ने 3 बच्चों को जन्म दिया और डॉक्टर्स की एहतियात के सबब बच्चे कोरोना से मुतासिर नहीं हुए। इसी तरह का रियासत में पहला मामला है। 3 बच्चों को वजन कम होने की बिना पर जिले सरकारी हॉस्पिटल में ICU में रखते हुए इलाज किया गया और आज इनकी सेहत याबी के बाद इन्हें घर वापस भेजा गया। इस मौके पर डॉक्टर प्रतिमा राज ने तमाम डॉक्टर्स व तिब्बी अमले की खिदमत की सताइश की और कहा कि रियासत में इस तरह का पहला मामला है जिसमें मां कोरोना से मुतासिर होने पर भी बच्चों पर इसका असर नहीं हुआ और इन मुश्किल हालात में भी डॉक्टर्स ने 3 बच्चों और मां की जान की हिफाजत की। ये एक अहम तरीन कारनामा है। ఆవిడ ప్రెగ్నెంట్ లేడీ, ఆవిడ మన దగ్గరికి వచ్చింది।
అండ్ వచ్చినప్పుడు తన కడుపులో ట్రిప్లెట్స్ ఉన్నట్టు, అంటే 3 బేబీస్ ఉన్నట్టు మన వాళ్ళు గ్రహించారు. అండ్ బయట హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఎవరూ తీసుకోలేదు. అండ్ లాస్ట్ మూమెంట్ యాక్చువల్లీ మనకు కూడా టైం లేదు, అంటే కరెక్ట్ డెలివరీ టైంకే ఆవిడ వచ్చింది. మేబీ 1 డే 2 డేస్ ముందు రాలేదు, కరెక్ట్గా డెలివరీ టైంకే ఆవిడ రావడం జరిగింది. అండ్ ఆవిడ వస్తుంది అనేసి ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు తెలిసింది. ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిన వెంటనే మా గైనిక్ టీమ్ని అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. అట్లనే మా క్యాజువాలిటీ టీమ్ని కూడా అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇమ్మీడియట్గా రావడంతో ఆమెని తీసుకోవడము, ఆమెకు కావాల్సిన టెస్టులు అన్నీ చేయడము అన్నీ చేశాము. ఆ టెస్టుల ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే కోవిడ్లో ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ అని ఉంటాయి. ఆ ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ అయిన LDH కానీ, సీరం ఫెర్రిటిన్ కానీ, D డైమర్ కానీ అవన్నీ చాలా రెట్లు పెరిగిపోయి ఉన్నాయి ఆవిడకి. సో కానీ మా డాక్టర్ల ముందు ఒక ఛాలెంజ్ లాగా అంత పెరిగిపోయినా కానీ ఆ పేషెంట్ని హైదరాబాద్ రెఫర్ చేయకుండా మేమందరం కలిసి ఒక టీమ్గా OBG టీమ్, అట్లనే పీడియాట్రిక్స్ టీమ్ అండ్ జనరల్ మెడిసిన్ టీమ్, ఎనస్థీషియా టీమ్ అండ్ ఈవెన్ కౌన్సిలింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కోఆపరేషన్తో ఆ రోజు మేము ఆవిడకి సిజేరియన్ చేయడం జరిగింది. సిజేరియన్ చేసినప్పుడు 3 పిల్లలు పుట్టారు. ఆ 3 పిల్లలు కూడా లో వెయిట్ అన్నమాట. मुस्लिम वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी सदर हाफिज लई खान की वक्फ बोर्ड CEO से नुमाइंदगी। अनकरीब वक्फ बोर्ड की खुसूसी टीम का जिले को दौरा। आज मुस्लिम वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी निजामाबाद के एक वफद ने कमेटी सदर मौलाना हाफिज लई खान की सदारत में रियासत वक्फ बोर्ड CEO मोहम्मद कासिम से मुलाकात की और कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाजियाबी व खलील सराय की वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 12 किए जाने वाली नुमाइंदगी के बाद भी कार्रवाई न होने पर वजूहात तलब की, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए जल्द अज जल्द जिले को वक्फ बोर्ड की जानिब से एक खुसूसी टीम की रवानगी का तयक़ुन दिया। जिले निजामाबाद रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के सुभाष नगर में मौजूद अयप्पा मंदिर कंटेश्वर पर हाजिर होकर खुसूसी पूजा अंजाम दी। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के सुभाष नगर में मौजूद अयप्पा मंदिर कंटेश्वर पर हाजिर होकर खुसूसी पूजा अंजाम दी। इस मौके पर मनादिर कमेटी के इतराफ से रुकन असम्बली निजामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली निजामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रियासती तेलंगाना की तरक्की के लिए वजीर आला KCR की अहम तरीन काविशों के सबब आज तेलंगाना अव्वलीन मुकाम पर पहुँचने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में TRS कायदीन जगन व दीगर ने शिरकत की। पटाखा जात मालिकीन दुकानात कायम करने के लिए महकमे पुलिस की इजाजत यकीनी तौर पर जरूरी है। बगैर इजाजत के पटाखा जात दुकानात कायम करने की बिना पर सख्त कानूनी कार्रवाई का दिया इंतबा। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया की हिदायत के मुताबिक दीपावली त्यौहार के मद्देनजर पटाखा जात दुकानात के मालिकीन जरूरी तौर पर पुलिस इंतजामिया की मंजूरी लेने के लिए अहकामात जारी किए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जिले निजामाबाद के पुलिस कमिश्नरेट के इहाते में मौजूद निजामाबाद आरमूर बोधन के इहाते में तेलंगाना गेजेट जियो नंबर 163 के तहत पुलिस कमिश्नरेट ऑफ ग्रेड होने पर दीपावली त्यौहार के मद्देनजर पटाखा जात दुकानात के मालिकीन यकीनी तौर पर ACP से इजाजत लेकर इससे ताल्लुक़ रखने वाली तफसीलात को हासिल करने के लिए जिम्मेदार डिवीजन ओहदेदारान से राब्ता पैदा करने के लिए कहते हुए बगैर इजाजत के पटाखा जात दुकानात कायम करने की बिना पर पटाखा जात मालिकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने का इंकशाफ किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। अब दिल्ली में भी लहराएगा TRS का झंडा। दिल्ली में TRS दफ्तर के लिए फराहम करदा अराजी का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। मरहूम TRS कायद मेंबर यासीन साबरी के अफरादे खानदान से ZP चेयरमैन D विठल राव, TRS सदर ईगा गंगारेड्डी व रामकिशन राव ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। वो हर तरह की मदद फराहम करने का किया वादा। बोधन की तरक्की के लिए हल्का असम्बली बोधन मस्जिद मंडलों में किया जाएगा तकसीम। रुकन असम्बली शकील आमिर।
कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाजियाबी व खलील सराय की अराजी पर से काबिजीन को बर्खास्त करने के लिए सदर कमेटी हाफिज लई खान की पेशरफ्त जारी। खुदा की अमानत की हिफाजत करना हर एक का फर्ज। दिल्ली सरकारी हॉस्पिटल का एक और अजीम कारनामा, कोरोना से मुतासिर हामिला खातून व इसके बच्चों की बचाई जान। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने डॉक्टर्स की खिदमत की सताइश। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।